rise as the academic procession is about to enter here. Ladies and gentlemen, kindly rise and stand for the national anthem. This national anthem is an exemplary work of world-famous Veena player Pandit Vishwa Mohan Bhatt. Oh, may all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Oh, peace, peace, peace. I here request for the invocation music to play. Oh.
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. May I now call Registrar, ITM University Gwalior, Dr. Omveer Singh Chauhan sir, to request Honorable Chancellor Madam Dr. Ruchi Singh Chauhan to declare the convocation open. Honorable Chancellor, may I request you to declare the convocation open. I hereby declare the 7th Convocation Special of ITM University Gwalior open. Thank you. The word convocation is derived from the Latin word convocare, which means calling or coming together. Today, we come together to celebrate the achievements of our students, to award them degrees, and to see them dressed up in a convocation gown in which they are looking absolutely wonderful. ITM University has recently held its 7th Convocation Ceremony 2022 in a prolific manner. Today, we are here with the same never-ending enthusiasm in this special edition of the 7th Convocation Ceremony. Hello and namaste to one and all. With a feeling of pride and privilege, I, Chanchal, welcome you all in the special edition of Convocation Ceremony of ITM University Gwalior. With the utmost pleasure, I welcome our dignitaries, Dr. Vijay Pandang Bhatkar, an architect of Param Supercomputers and educationalist. To felicitate sir, I request Ms. Khushi Chaturvedi. With a poetic heart, I welcome Shri Sheen Kaf Nizam Sahab, an eminent Urdu poet and literary scholar. To welcome sir, I request Aman Pathankar. Next, with great honor, I would like to welcome Ustad Zakir Hussain, a renowned tabla maestro, composer, percussionist, music producer, and film actor.
I heartily acknowledge the presence of founding father of our university, Dr. Ramashankar Singh ji, a vibrant, ardent scholar, orator, wisdomful, in all an acclaimed personality of all time. We all are enlightened by his gracious presence. Welcome you, sir. I kind welcome Honorable Chancellor Madam, ITM University, Dr. Ruchi Singh Chauhan, Honorable Pro-Chancellor, Dr. Daulat Singh Chauhan, Honorable Pro-Vice Chancellor, Dr. Santosh Narayan Kherkar, Honorable Director, ITM GOI, Dr. Meenakshi Majumdar Ma'am, respected Dean, HODs, faculty members, our guests, media person, and dearest students. If anyone would ask me what is ITM and why ITM, if anyone would ask me, then I would love to answer. ITM is everywhere we stand, it's anywhere we dance, it's where the earth loves the feel of our feet. Its body lies in the abstract and aesthetic sculptures, its heart lies in its blossoming students, its spirit lies in the Bodhi tree, and its soul lies in its very own slogan, that is celebrating dreams. So give a huge round of applause. Moving further, I request Honorable Pro-Vice Chancellor Sir, Dr. Santosh Narayan Kherkar, to present memento to our eminent guest, Shri Sheen Kaf Nizam Sahab. Moving further, I would like to call public intellectual, scholar, art critic, presenter, as well as teacher of journalism, Mr. Jayan Singh Thomas sir, to proceed this program. Thank you. ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के 7वें विशेष दीक्षांत समारोह में पधारे माननीय अतिथियों, सुधीजनों, विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर का ये 7वां विशेष दीक्षांत समारोह हमें सप्तर्षि मंडल की याद दिलाता है। सप्तर्षि मंडल जिसमें 7 नक्षत्र हैं, पुलह, पुलस्त्र, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, मरीचि और उसके साथ साथ ध्रुव तारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है। विश्वविद्यालय प्रश्नाकुलता के केंद्र होते हैं, विनम्रता के केंद्र होते हैं, साहस और अभय के केंद्र होते हैं। ITM विश्वविद्यालय में सप्तर्षि मंडल में उस ध्रुव तारे की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठाता, संस्थापक, कुलाधिपति माननीय रमाशंकर सिंह जी। उनकी गरिमा में उपस्थिति को रेखांकित करते हुए हम ध्यान देंगे ठीक बैकड्रॉप पर पीछे महात्मा गांधी के लिखे हुए उस वाक्य की तरफ जो पताकाओं से, विश्व की तमाम पताकाओं से ढका हुआ है और जिस पर लिखा हुआ है, persistent questioning and healthy inquisitiveness are the first requisite for acquiring learning of any kind. विश्वविद्यालय प्रश्न करने के केंद्र होते हैं और ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम लगातार प्रश्न करते जाते हैं। और उसी प्रश्नाकुलता का प्रमाण हमारे इस विश्वविद्यालय में बोधि वृक्ष की 6ठी संतति का पौधा है, जिसे श्री रमाशंकर सिंह जी विशेष रूप से बोधगया से लेकर आए थे। आज के इस विशेष दीक्षांत समारोह में स्वागत भाषण के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के माननीय सम कुलाधिपति महोदय डॉक्टर दौलत सिंह चौहान जी। इस विश्वविद्यालय के शिल्पकार, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा दें।
हम सबके पथ प्रदर्शक श्रद्धेय श्री रमाशंकर सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती रुचि सिंह जी, सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर भाकर, जिन्हें आज एक महत्वपूर्ण कार्य से भोपाल जाना पड़ा, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं रह पाए, सम्माननीय रजिस्ट्रार डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, हमारे देश के पहले कंप्यूटर के शिल्पकार, जाने माने महान वैज्ञानिक, बहुत ही सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विजय भटकर जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपने नवाचार से पूरे विश्व में ख्याति दिलाने वाले, संगीत को पारंपरिक सीमाओं और बंधन से पार ले जाने वाले विद्वान तबला वादक श्री जाकिर हुसैन साहब, विश्वविख्यात शायर, चिंतक और मैं उन्हें एक उम्दा शिक्षक भी मानता हूँ, हम सबको प्रेम और एहसास के करीब ले जाने वाले श्री शीन काफ निज़ाम साहब, सभा में उपस्थित शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल के सम्माननीय सदस्य, सभी गणमान्य अतिथि, शिक्षक एवं प्रिय छात्र छात्राएं, सभी को नमस्कार। ये पहला साल है जब हम विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन नाद में कर रहे हैं। 19 नवंबर को 7वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टर भटकर और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे, इसलिए हमें इस विशेष दीक्षांत समारोह के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दीक्षांत विशेष ही नहीं, विशिष्ट भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम उन विधाओं के सर्वश्रेष्ठ विभूतियों के बीच हैं, जो विधाएं इस संस्था के मूल दर्शन और मजबूत नींव में हैं। वैसे तो यह संस्था व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए देश एवं विदेश में जाना जाता है। यहाँ लगभग 20-22 देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, पर इस संस्थान के संस्थापक श्री रमाशंकर सिंह जी ने शुरू से ही हर तरह की कला, संगीत, साहित्य को संस्थान के मूल विचार, दर्शन और क्रियाकलापों में रखा। हम ये मानते हैं कि एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनने में इन कलाओं की समझ का बड़ा योगदान होता है। हमारे इंजीनियर्स, नर्सेज, आर्किटेक्ट्स, फार्मासिस्ट, मैनेजर्स, एग्रीकल्चर वैज्ञानिक आदि सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल ही नहीं होते, बल्कि दूसरे संस्थानों से निकले हुए प्रोफेशनल से कुछ अलग और बेहतर होते हैं। ऐसा कई बार जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां आती हैं, वे फीडबैक में भी देती हैं, और जब हमारे एलुमनाई मीट में आते हैं तो हमें बार बार बताते हैं कि सर 10 साल पहले वो संगीत सम्मेलन हुआ था, उसका महत्व आज हमें समझ में आता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे उस कार्यक्रम ने क्या प्रभाव डाला था ये अब समझ में आता है। इंसान को, मैं ऐसा मानता हूँ, इसमें अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, कि इंसान को मशीन बनाने की दौड़ और होड़ में ये कलाओं की समझ ही है जो हमें एक अच्छा नागरिक और इंसान बने रहने में मदद करती है। एक ऐसा इंसान जो शांति प्रिय हो, जिसके मन में एक दूसरे के प्रति किसी भी कारण से नफरत नहीं हो, ऐसे इंसान जिनके बीच में निस्वार्थ प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति करुणा हो। आज हमारे देश को 30 साल पहले टेक्नोलॉजी, विशेषकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले डॉक्टर भटकर की गरिमाबाई उपस्थिति है, और आज हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर भटकर को मैं सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं मानता, पर मैं उन्हें भारत माता का मान बढ़ाने वाला एक असली सपूत भी मानता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये आपको सुनना जरूरी है, कि 80 के दशक में जब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी सिर्फ कृषि पर केंद्रित थी और हमारे किसानों को ये पता नहीं चलता था कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो अमेरिका से हमारे प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी ने बात की कि आपका सुपर कंप्यूटर अगर मिल जाए तो शायद हम मौसम का अनुमान ठीक ढंग से लगा पाएंगे। जो कंप्यूटर के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। सैटेलाइट जो इमेजेस भेजता है उसकी मदद से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिका ने ना नकुड़ तो किसी तरह से नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ वैज्ञानिकों से बात की और उन वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भटकर का नाम सुझाया
कि डॉक्टर भटकर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हिंदुस्तान को अपना कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दे सकते हैं। राजीव गांधी जी जब डॉक्टर भटकर से मिले तो उन्होंने सिर्फ 3 सवाल पूछे। क्या ये हम बना सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा उतने पैसे, उससे कम पैसे जितने में आप अमेरिका से सुपर कंप्यूटर ले रहे थे। और कितने समय में बन जाएगा? डॉक्टर भटकर ने कहा 3 से 5 वर्ष में। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में 3 सवालों पे कोई करोड़ों का प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कभी भी मंजूर नहीं हुआ होगा जो वह मंजूर हुआ। यह सब इसलिए हुआ कि डॉक्टर भटकर का आत्मविश्वास था, उनकी टीम का आत्मविश्वास था। और ऐसा कम ही होता है कि इस देश में इतनी जल्दी किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए। सुपर कंप्यूटर परम ने इस देश की तकदीर को बदलने में बड़ा योगदान दिया। मैंने बताया मौसम संबंधी सटीक जानकारियां जब से प्राप्त होने लगी है, मौसम विभाग से सही अनुमान होने लगा और हमारे किसानों को बहुत मदद होने लगी है। इस कार्य के लिए ये हिंदुस्तान का एक एक किसान डॉक्टर भटकर का ऋणी है और हम सब उसके ऋणी हैं। यह वाकया मैंने जब सुना था जब मैं कक्षा 12वीं में था और पहली बार कंप्यूटर देखा था। हमारे एक टीचर पुणे से थे, उन्होंने यह वाकया मुझे बताया। और शायद जब मैं अपनी उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहा था तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप में इस किस्से ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई आगे करूं। सर, हम सब आपको हमारे बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा सकती है और मैं शायद थोड़ा अति उत्साही भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं उनको देखने की इच्छा, साक्षात देखने की इच्छा मेरी कक्षा 6ठी से है। मैं बात कर रहा हूं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की। हम में से कई लोगों के लिए, मेरे ही नहीं आप में से कई लोगों के लिए खूबसूरत सपने के सच होने से कम नहीं है। वे मुझे सिर्फ एक तबला वादक या शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार ही नहीं लगते, बल्कि वे मुझे एक गणित के वैज्ञानिक, एक नवाचारी और किसी संत से कम भी नहीं लगते। जब उनके हाथ तबले पर थिरकते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी लय ताल पर घूम रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको अभी बताऊंगा। उनके नवाचार से तबले को एक अलग पहचान मिली है। जो तबला कभी सिर्फ संगत का वाद्य माना जाता था, इन्होंने उसे एक नया वजूद दिया है और उसे मुख्य मंच पर पहुंचा दिया है। ये काम मैं मानता हूं अद्वितीय है और एक समय अकल्पनीय भी था। उस्ताद जाकिर हुसैन का परिचय मेरा एक तरफा परिचय कक्षा 6ठी से है, जैसे मैंने बताया आपको। जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया, हमारी गुरु थी बेडेकर आई और उन्होंने पहली कक्षा में हमें बताया कि ताल और तबला क्या होता है। तो उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। आपके जैसे आज कंप्यूटर, मोबाइल आपके पास ऐसे नहीं होते थे, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि तबले की उत्पत्ति पखावज से हुई है और पखावज की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है, वो शिव जो अनंत है। उन्होंने बताया कि भगवान शंकर जब डमरू बजाते हैं तो पूरी सृष्टि नाच उठती है, वे कभी बेताले नहीं होते। उन्होंने भगवान शंकर के नटराज के रूप का वर्णन करते हुए उनकी खुली जटाओं, सुंदर भाव और संगीत और नृत्य में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव, उसके बारे में बताया। जैसा मैंने कहा, कोई मोबाइल, लैपटॉप नहीं होते थे तो हमें हमारा शिव खुद ही गढ़ना पड़ता था। अपनी कल्पना में सोचते थे शायद शिव ऐसे होंगे जो नटराज का रूप है। उसके बाद खंडवा परीक्षा होती थी हमारी, तो इंदौर होके खंडवा हमें ले जाया गया हमारी गुरुजी द्वारा, और बीच में इंदौर हम एक दिन रुके। वहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन का एक शो था। मुझे तारीख बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वो वाकया ऐसा याद है जैसे आज हो रहा हो। हमें वो शो देखने ले जाया गया और ये बताया गया ये तबले के भगवान हैं। पहले
गुरुजी ने बोला तो हमने बहुत ध्यान से सुना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाते देखा तो ऐसा लगा साक्षात भगवान शंकर हमारे सामने बैठे हों और पूरी सृष्टि उनकी ताल पर नाच रही हो। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। परीक्षा देके जब हम आए वापस तो हम सोचते रहे कि कहीं हमारे नटराज ऐसे तो नहीं हैं, और फिर हम उन्हें सुनते रहे, आगे बढ़ते रहे, उनके तबले को सुनते रहे, और तब कुछ कुछ तबला समझ में आने लगा। आज मैं ये बात बहुत हिम्मत करके पहली बार किसी से भी साझा कर रहा हूँ, और ये ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जब अशोक वाजपेयी जी ग्वालियर आए, उन्होंने कहा कि मुझे मल्लिकार्जुन मंसूर में परमात्मा दिखते थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगता था ऐसा मेरे ही साथ हुआ है। मुझे लगा ये बात आप लोगों से जरूर करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए खासकर छात्रों से, क्योंकि कई बार जीवन में छोटे और अप्रासंगिक लगने वाले अनुभव हमें स्थायी खुशी और अनोखी असामान्य अनुभूति देते हैं, जो हमें वे बड़ी वस्तुएं नहीं दे पाती जिन्हें हम बड़ा मानते हैं और जीवन भर उसके पीछे भागते हैं। मुझे पता है आप सब लोग डिग्री पाने से पहले 6 डिजिट की सैलरी पा जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपके जीवन की एक रेस दौड़ शुरू होगी जिसमें बड़ी गाड़ी, बड़ी तनख्वाह, बड़ा बंगला, ये सब महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो स्थायी खुशियाँ हैं, कभी भी वो बड़ी चीज़ें नहीं देती, वो छोटी छोटी चीज़ें देती है, और इन छोटी चीज़ों की का महत्व आप समझें, क्योंकि ये छोटी नहीं असल में बड़ी होती है। जब हम जाकिर हुसैन साहब को सुनने लगे तो कुछ समझ में आने लगा, और अपने अल्प ज्ञान से मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ कि जब जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं तब उसमें सिर्फ ताल, बोल या रिदम ही नहीं होती, बल्कि उसमें एक रागदारी और एक स्वर संगीत भी होता है। मेरी समझ से विश्व में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। उनका तबला सिर्फ ताल ही नहीं देता, साथ में स्वरों को एक स्वर संगीत या सिम्फनी में भी पिरोता है, जिससे किसी और वाद्य की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और आप घंटों जाकिर हुसैन साहब का तबला सुन सकते हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि वे इस संगत के वाद्य को मुख्य मंच पर एकल वाद्य के रूप में स्थापित कर पाए हैं। मैंने कहा ऐसा करने वाले मेरी नज़र में वो अकेले हैं इस दुनिया में। मैंने उन्हें एक गणितज्ञ भी कहा। जाकिर साहब जब विलंबित में ताल बजाते हैं तो लगता है कोई कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सरलता से हल हो रही हो। जब कोई ताल द्रुत में बजाते हैं तो लगता है इंटीग्रल कैलकुलस की कोई जटिल इक्वेशन गढ़ी जा रही हो। जब वे दुगुन तिगुन में बजाते हैं तो लगता है किसी जियोमेट्रिक सीरीज का प्रोग्रेशन या एक्सपांशन हो रहा हो और वो अनंत की ओर जा रही हो। ऐसी सटीक मात्राओं की गणना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो वो भी एक पल चुके बिना। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लगभग सभी जगत वंदित कलाकार नाद में आ चुके हैं, और आज ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जाकिर हुसैन साहब भी आज नाद में हैं। तो ये हम बार बार बात करते हैं कि नाद पूर्ण जब होगा जब जाकिर हुसैन साहब यहाँ होंगे, तो आज हम उस पूर्णता की ओर बढ़े हैं, और मैं मानता हूँ जिस दिन उनके तबले का अनुनाद इस नाद में गूंजेगा उस दिन ये नाद पूर्ण होगा। मैं अपने उतावलेपन से पर बहुत विनम्रता से हम सबकी ओर से, पूरे ग्वालियर शहर की ओर से उस्ताद जाकिर हुसैन को नाद को पूर्ण करने का आमंत्रण देता हूँ। आज जिन विभूतियों को हम मानद उपाधि से नवाजेंगे वे अलग अलग कार्य क्षेत्र के जरूर हैं, पर उनमें कई समानता हैं, और ये सब छात्रों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की परिकल्पना 0 और 1 पे आधारित है, बाइनरी है। इसी तरह ताल की परिकल्पना ताली और खाली पर आधारित है। दोनों अपने काम में इस तरह लीन है कि भटकर साहब के मोबाइल नंबर में सिर्फ एक 9 है, बाकी सब 0 और 1 है।
जाकिर हुसैन साहब का ईमेल आईडी तबले के बोल धा से बनता है, dha@domainname.com। मैं आप सभी छात्रों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी काम को इस तन्मयता से नहीं करते तो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में ये चीज़ें नहीं दिखती जो आप कर रहे हैं, और जब तक वो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में नहीं दिखती तब तक आप उसके सर्वश्रेष्ठ को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जो कर रहे हैं उसमें तन्मयता से जुड़ना पड़ेगा, इस तरह की तन्मयता से जुड़ना पड़ेगा। आज ये एक बहुत ही सुखद संयोग है कि हिंदुस्तान के अजीम व शान शायर श्री शीन काफ निज़ाम आज का दीक्षांत भाषण देंगे। ऐसी महफिल कम ही सजती है जहां संगीत, टेक्नोलॉजी और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ एक ही मंच पे हों। शीन काफ निज़ाम बहुत ही गहरे विचारक हैं और उतने ही गंभीर दार्शनिक भी हैं, और एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे अकेले ऐसे शायर हैं मेरी नज़र में जिन्होंने दुनिया में ये सिद्ध किया है कि उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। एक हिंदू, वह भी ब्राह्मण, उर्दू से इस कदर प्रेम कर सकता है कि वह शिव किशन बिस्सा से हमेशा के लिए शीन काफ निज़ाम हो जाता है। वे सही कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बोलना और सीखना, बोलना तो सिखाते हैं, देखना भी सिखाते हैं, पर उन्हें सुनना और सही देखना नहीं सिखाते, और ना उन्हें महसूस करना सिखाते हैं। आप जब आज उन्हें सुनेंगे तो सिर्फ कान से मत सुनिएगा, अपने दिमाग, दिल और एहसास को भी खुला रखिएगा। वे जो कहेंगे, अगर उसमें जो नहीं कहा गया है वो आप महसूस नहीं कर पाए तो आप उनकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। वे जितने गहरे हैं उतने ही सरल भी हैं। उनको जब मैंने हमारे स्कूल में लगभग 7 वर्ष पूर्व कक्षा 3 के छात्रों को कविता का पाठ पढ़ाते सुना तो मुझे लगा कोई इतने गहरे और गंभीर लगने वाले विषय को इतनी सरलता से कैसे समझा सकता है। मुझे लगता है ये तभी संभव है जब आप खुद बहुत सरल इंसान भी हो। समय की कमी है और आज हम इन विद्वानों को सुनने और मानद उपाधि से विभूषित कर हमारे कुल में स्वागत करने के लिए आतुर हैं। इसलिए अपनी बात को इस फिराक के शेर के साथ समाप्त करता हूँ, जो हम जब 2 दिन पहले बात कर रहे थे तो रमा शंकर जी ने अपने कमरे में कही, आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। आप शायद मेरी इस बात को आज अतिशयोक्ति मान सकते हैं, पर मैं पूरे दावे से आपको कह रहा हूं कि 10 से 15 साल बाद जब आप इस दिन को पलट कर देखेंगे या इसके अनुभव को याद करेंगे, तब यह पाएंगे कि हम उन सब खुश नसीब लोगों में से हैं जिनकी आने वाली पुश्तें हम पर फ़क्र सिर्फ इसलिए करेंगी कि हमने डॉक्टर विजय भटकर, उस्ताद जाकिर हुसैन और श्री शीन काफ निज़ाम को साक्षात देखा और सुना है। आप सबका आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं और छात्रों का खासकर धन्यवाद करता हूं जो इस बड़ी संख्या में हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर का नाद मंडप आज कुछ विशेष तौर पर खुशनुमा है, और वो इसलिए कि आईटीएम ग्लोबल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनकी मुस्कान यहाँ पर सुरभि बिखेर रही है। उनका विशेष रूप से स्वागत कि वो आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जहाँ विज्ञान और कला का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर विजय भटकर जी को आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर की तरफ से डीएससी की मानद उपाधि से विभूषित किया जाएगा, और इसके साथ ही उस्ताद जाकिर हुसैन साहब मानद उपाधि ग्रहण करेंगे। हम सब इस बात से परिचित हैं कि विज्ञान और कला के अंतर संबंधों पर
कई दशकों से लंबी बहस और विमर्श का वातावरण बना हुआ है। आज इस मंच पर कला और विज्ञान क्षेत्र की अनुपम विभूतियाँ विराजमान हैं। डॉक्टर भटकर जी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वे उस ऐतिहासिक नगर में हैं जहां शून्य का पहला उल्लेख मिलता है और उनका पूरा जीवन शून्य और एक इन बाइनरी नंबरों को खेलते हुए गुजरा है। वे उस समय के साक्षी हैं जब दुनिया में कंप्यूटर आया और ठीक उसी समय दुनिया में डॉक्टर विजय भटकर आए। परम सुपर कंप्यूटर के निर्माता डॉक्टर विजय भटकर जितने विज्ञान और तकनीक में रुचि रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा कला के क्षेत्र में। उनका संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुपर कंप्यूटर परम के अन्वेषक डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर सूचना तकनीक व वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के शिखर व्यक्तित्व हैं। 11 अक्टूबर 1946 को महाराष्ट्र भारत में अकोला के पास मुरंबा में जन्मे डॉक्टर भाटकर ने शक्तिशाली कंप्यूटर बनाकर एकल ध्रुवीय विश्व को तब विस्मित किया था जब कोई भी देश सहयोग करने को तैयार नहीं था। मेरा जन्म ही एक बेंचमार्क है कंप्यूटर की हिस्ट्री में, क्योंकि मेरा जन्म जब हो रहा था तभी कंप्यूटर का भी जन्म हो रहा था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2015, पद्मश्री 2000 व महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण से अलंकृत डॉक्टर भाटकर को सूचना तकनीक से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों को स्थापित व विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। And they were clear now that we are going to require significant computational resource. So what was at that time called as super. Super means supreme. That is the biggest at that time, the most powerful at that time, most capable at that time. So that was called supercomputer. CDAC, Center for Development of Advanced Computing, ERNDC, Electronic Research and Development Center, Indian Institute of Information Technology, Kerala, Maharashtra Knowledge Corporation Limited, MKCL, Pune, इंडिया इंटरनेशनल मल्टीवर्सिटी इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। MKCL के माध्यम से मात्र एक दशक में 1 करोड़ लोगों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने का कीर्तिमान भी डॉक्टर भाटकर ने रचा है। When I look at our country today, I see that we are facing great challenges, but these challenges are something very interesting. What we are facing today is great paradoxes of unprecedented proportion. Let me just illustrate. On one side, we are undisputed, I think, power in the information technology, the knowledge technologies. Another side, in India, we have the largest illiterate population of the world. Even today, 30 crore people do not know how to read, forget a function of literacy. विज्ञान व अध्यात्म के संश्लेषण की दिशा में कार्यरत डॉक्टर भाटकर को भारत सरकार से सन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद शासी निकाय के सदस्य डॉक्टर भाटकर ने भारत को एक सूचना समाज के रूप में विकसित करने व डिजिटल विभेद से मुक्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज के आदर्शों पर आधारित ग्रामीण विकास के महत्वाकांक्षी प्रकल्प उन्नत भारत अभियान के मार्गदर्शन में डॉक्टर भाटकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर भाटकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकारों में रहे हैं। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर सूचना तकनीक व वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को DSC की मानद उपाधि से विभूषित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। माननीय कुलाधिपति महोदय श्रीमती रुचि सिंह जी डॉक्टर विजय भाटकर जी को DSC की मानद उपाधि से विभूषित करेंगे।
बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर जी को। My dear friends, respected guests, today is a great day in my life. Naturally, I am very overwhelmed. I have received honorary doctor and other degrees several times from several universities and several institutions. But as the sun shines on my face today, I am feeling, I am experiencing the radiance of this day, a very special day. These days are very special for us. We are celebrating 75 years of our independence. For this independence, it has been a great struggle in the life of this nation. The history of our independence is well, we have seen, we have experienced. Perhaps the young generation has not known the price that we had to pay. But I have seen those days myself. And I recall the memories of these days. We are celebrating the 75 years of our independence. And 25 years later, we will celebrate the 100 years of our independence. As this day is very special for us, particularly for students, particularly for teachers, people like me, this one. When we celebrate 100 years of our independence, we have a great dream for that day. We have a great dream for even today. And my own dream is that when we celebrate, we rise to celebrate in this edifice like Nad. My dream is that on this day, India will once again rise. Rise to what? To welcome that day, that when, as our Honorable Prime Minister often said, that in this great nation will once again become the great nation, the great civilization of the entire world, where we'll set up new ideals of what is really independence of the entire
world means. You know, we are assuming the presidency of a very special presidency where we want to show the world what independence would mean. Independence of the entire population of the world, which is closing to 8 billion people. How the world should celebrate its independence, in what sense? We have to establish new ideals. We are talking about that. What would be the new ideals for the humanity? When India celebrated, that celebration has had a very special message to ourselves and to the world. And the message that came from, ये विश्व ही हमारा घर है. I remember the great saint of Maharashtra, Saint Dhaneshwar. He declared in Dhaneshwari, the commentary on great Bhagavad Gita, Hey Vishwachi, in Marathi I am saying, Hey Vishwachi Maje Ghar. The whole world is my family. And that is not only I am just declaring like that kind of thing, I am very steadfast in this declaration. It is so important that I will never forget this independence at any cost. Such is the day, such is the ideal, such is the civilization. So we are rising here to establish, re-establish, reaffirm that great civilization which really rose from this nation. I think this day is very special in the context of, we should remember it again and again and again and again. Can this great nation reclaim her glory, not for glory, but the glory that will shine from its ideals, from our ideals. That is the issue. I have no doubt, we have been often talking about what would be those ideals. But those ideals will establish in a civilization where knowledge is most respected. I think what today, when I am standing in this convocation hall, which has been specially made, what are the ideals of this nation? We never celebrate it. We are never proud of our great wealth, great heroics, or what we accomplished in the great wars. We always celebrated only the great knowledge system which India built. If at all I am proud of this country, proud in the sense of with humility. That is the great knowledge system that we established, which you call Vedic knowledge system. Vedic knowledge system that is articulated in our Vedas, in our Upavedas, in our Vedangas, in our Darshanas. Perhaps we are not introduced to the great knowledge system in our education system of today. I will not say about this university. I have seen great culture as I was watching. As I was watching the words in the last, I think the conference which we were celebrating, in which I was participating. See, I must be one thing we must be proud of, my dear students, and all the parents, and myself, that I was born. I am very proud that I am really grateful to God that I was born in this great nation of the world. Great nation. I was born in a small village, population of 300, in a small village in Maharashtra. This one. I studied in a school which had no building. Not far back, we had schools with no buildings. We had schools where there was only one teacher. But in such a system, it could impart. I think one thing I was very proud of is that our teachers, our Gurujans, our things told us about the civilization of this.
culture of this country. Again and again, it came from our grandmothers, it came from our parents, and we must be very proud of that kind of things. If at all we love is our motherland, not very proudly, in that sense, with great pride of that kind of thing, with great humility. This one. When I look back and look forward, really, can we reclaim that culture? That grand culture which you are talking about, 75 years we are celebrating, and very soon 100 years. What are the contours of that culture? And every university must revisit, particularly on that very special day like a convocation day like today, this one kind of thing. Convocation is a very important day where we must revisit for which what are the ideals on which we are trying to get education. What do we want to be? What is the purpose of our life? Where we will take our great Mother India once again? I have only one goal in that kind of things. India should once again rise and re-establish in which we are very steadfast about thinking, where I will answer the questions which come to my mind. Why am I here? This is a Vedic question, fundamental Vedic question. When I ask, why am I here? What is this world that I experience, that I see, the sky that I see, this one? Where will I go from here? These questions have been addressed in our Vedas. And one of the purposes of our university should be, not one of the purposes, I think, should be the universalization of mind. Is this to the education, will it bring to me the universalization of mind, where I will accept everybody, not only humans, but all beings of this creation. And then what happens? If these fundamental questions arise before us, which have been answered in the Vedas. That's why I am very proud that I was born in this culture. Today, we were talking about the supercomputer, computing. Imagine a culture that thought of that entire number system can be abstracted into 2 digits, what was mentioned, 0 and 1 kind of things. Not 0 and 1, but 0 and its negation. That's how it is written, its negation. The number system that has given an amazing technology, an amazing instrument in human cognition, that all the expression which can be put into symbols can be abstracted in this form. And that's what our rishis told us. It is that system, I'm not talking of the digital, it is that system that created that abstraction which made the impossible thing possible. When I look at computers or supercomputers or advancement or a language, I am amazed that anything that can be expressed can be expressed in these 2 forms. Not only 2 forms, as I said, 1 form, 1 and its negation. It can be. Look at this. I think young students, don't look at it at computers, don't look at it in that form, but look at this great abstraction. The power of science comes from abstraction. Power of science comes from abstraction. I write one equation, and that equation can tell us about how this world, how this environment works, how anything works. The abstraction of mathematics. That's what we should look at. It is that abstraction which made possible for us to develop supercomputers, to build models for everything that we experience and work with, friends. I would like that this university should teach
And all universities must teach this kind of universal language, which will lead us to something which we attain that we have not attained so far. That is the power of mathematics. That is the power of any abstraction. Don't look at from solving an equation or this kind of thing. What is the abstraction behind it? Our rishis did that, or Vedas really do that. So many things can be said, friends. When we celebrate 75 years, Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are celebrating 100 years. What is that thing which India will offer to the world? What is that thing which we'll offer ourselves? What is that thing when we talk about enlightenment of Buddha or enlightenment of our great rishis, enlightenment of our knowledge system, that abstraction, that realization, that is most important for us. Universities are meant for that, to understand that universalization of our mind, the language which will teach us that. And that's why we need to revisit our great culture and civilization, and our music, our dances, our arts. I am very pleased, personally very, very pleased, to see that this university respects science and technology and engineering and management and many other disciplines, but it also respects our great art, our great abstractions, our great dances. Zakir Hussain ji here, how his music enthralls us more than anything else. We have great poets here, kind of things. The importance of poetry. It is in this context, gentlemen, I want to tell you, I was just addressing the conference, which conference is dealing on the issues of science and technology, communication and networking. But most important issue before us is that, what is that it teaches, it tries to bring. One thing which I admire and I acclaimed was that it is now, this university is celebrating science, technology, dance forms, music, and we admire all these things equally well. I think here, the great artists are present. Also, I think we are trying to learn newer and newer branches of frontiers of knowledge, like artificial intelligence, like new kind of networking, like a networking that can allow us to communicate with the frontiers of our cosmos, not a particular city or miles or this kind of thing, but also the frontiers of human understanding, human cognition. And what makes it possible? The knowledge that is expressed in our Vedas. I'm not saying Vedas just as an ancient knowledge system, but also the knowledge it embeds in us. It allows us to communicate with the Brahmanda. I'm not talking about the whole cosmos. How? What is that? What is that architecture of the human brain which makes it possible? We look at that, we live in a world, and look at that cosmos, billions and billions and billions of years. When I work with supercomputers, I come to know that what kind of computations are required for a supercomputer. What are the limits of that computation? And I say there are no numbers. Those numbers, humans are not even able to name those kind of things. And those numbers I will have to deal with. I will have to create supercomputers of those capacities. We will have to create those numbers. Why? But because this universe, this cosmos, is so vast. When I see the students here, I say that what kind of computers you will develop now? What kind of challenges can be given to them? They will be given challenges which can perform
not billions, not millions, but billions, not millions, but trillions, not trillions, but not exa, but beyond that kind of thing, where the no number, when the numbers have not yet been named even, kind of things. That is the challenge, and those computers will create. So many things can be said, but today, I think I have young students whom I'll invite in my own research labs, that can you think of a number of that kind? Can we develop supercomputers of that kind, computational engines of that kind, which will calculate those vast numbers on which you will take the cognizance of the whole cosmos, like that. I would like to invite your students and work along with me to create those possibilities, and then you will understand how is this universe. And then you realize that you have been so lucky that we were born in that human form which can cognate this entire Brahmanda. So many things can be said, but I'm looking forward for the day when our students will come out and reveal the hidden mysteries of this universe. And then you will realize how wonderful this world is. Then we'll realize how wonderful this human life is, how wonderful is this, and it can be abstracted. And I think Einstein said very rightly, the beauty of this Brahmanda, this universe, is that you can cognate uncognizable. You can cognate the things is so vast, so mysterious, that it can be cognated also. My dear students, don't settle. Let us not settle for anything less. I am born here. I have the unique opportunity, this one, where I can cognate in this very own life, maybe 100 years, 90 years, whatever the kind of thing. And the joy that will result from that cognition is so wonderful, which has been described in the Vedas. And let us not miss that, the great opportunity which will come from mathematics, which will come from languages, which come from music, which come from different arts. Lastly, I would say, my students and my teachers here, that today we are looking for great convergence of many fields together. It has never happened before. Today, as I said in the address to the conference, never before we are trying to bring in several fields together, where we'll be studying not only mathematics, not only languages, not only art forms, not only the forms of humanity, but tomorrow's knowledge of tomorrow's studying, our pursuits of knowledge will bring all these branches together. This is a great time of convergence, and that's why I'm very happy to be in the campus of this university, where really a very genuine, very honest attempt has been made to bring several branches of learning together and offer it to our students, the wonders of our knowledge system. So many things can be said. I am very proud that I have been honored. I said like that, I have been honored several times, but on different branches. But this is a very special thing where you realize, the Founder Chancellor has realized. I was listening to your students, researchers, that what kind of education is being imparted. We are talking of new knowledge system. We are talking about new education system. And we have to see that once again re-establish the new education system, which will open up that frontiers of knowledge that can be understood when we get born on this earth, on this planet, with this form. So let us not waste that time. Let's not waste this very important opportunity that has been given to all generous, given to us by all generous. May you learn all that, this magnificence of knowledge which we respect. I'm thankful to you for inviting me on this occasion, talking to students, the great vision of this university,
I'm sure this university will emerge one of the great universities of the future, and I have no doubt about it, what you are saying. Thank you very much. अस्तित्ववादी दर्शन के जनक जियां पॉल सार्त्र की उक्ति है, हु एम आई। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के कौटिल्य ब्लॉक की दीवार पर ये उक्ति लिखी हुई मिलेगी। लेकिन उससे भी आगे डॉक्टर विजय भटकर जी ने कहा कि मैं यहाँ पर इस धरती पर, इस ग्रह पर क्यों हूँ, वाई आई एम हेयर, और हमें इस प्रश्न की तरफ झांकने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब तबला के पर्याय हैं। यशस्वी पिता के यशस्वी पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने तबले को संगत वाद्य की परिधि से उठाकर विश्व के केंद्रीय मंच पर स्थापित किया है, प्रतिष्ठित किया है। वे सिनेमा में जा सकते थे। महान अभिनेता दिलीप कुमार ने बचपन में उनके फूल से कोमल चेहरे को हथेलियों पे लेते हुए कहा था कि मुगले आज़म में सलीम के बचपन की भूमिका तुम कर सकते हो। लेकिन बहुत विनम्रता से उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और वह भूमिका जलाल आगा को मिली। उस्ताद जाकिर हुसैन यशस्वी तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सुपुत्र हैं। क्रिकेट के मैदान में उनकी बीच की उंगली जख्मी हो गई और वे अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए तबले के साथ जुड़ गए। समूचे विश्व में उन्होंने संगीत का जिस तरह का संश्लेषण किया है, पंडित रविशंकर के बाद शायद उसकी और कोई उपमा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के अलावा नहीं मिलती है। अमेरिका में उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ वे संगत करने के लिए गए थे और उसके बाद फिर लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे हैं। आईटीएम विश्वविद्यालय का ये नाद मुक्ताकाशी मंच लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि कभी उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के चरण इस नाद में पड़ेंगे, और वो इंतज़ार आज ख़त्म होता है। लेकिन हम सब प्रतीक्षारत हैं जब नाद उनके तबले की ध्वनि से गूंजेगा। मैं बहुत आदर के साथ आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर की तरफ से उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का आप सब की तरफ से स्वागत करता हूं। उनके परिचय के लिए, संक्षिप्त परिचय के लिए देखते हैं ये वीडियो। विश्व वंदित उस्ताद जाकिर हुसैन की तबले पर थिरकती उंगलियां ब्रह्मांड को उसकी लय ताल पर घूमने का आभास कराती हैं। समकालीन संगीत की पुनर्रचना के साथ तबला को संगत वाद्य की परिधि से उठाकर केंद्र में प्रतिष्ठित व वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय उस्ताद जाकिर हुसैन को है। यशस्वी तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सुपुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 व मध्य प्रदेश शासन के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2006 से अलंकृत हैं। उन्हें सबसे कम आयु में पद्मश्री से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इसका शौक था तबले, वो माँ के पेट से ही पता नहीं सीखता होगा, और उसके बाद फिर मैं उसका मेरे पास सोता भी था और मैं उसके कान में पढ़ता था। जब वो नींद आ जाए तो फिर ही सोता था, नहीं तो नहीं, जब तक नींद आती तो और पढ़ो।
पढ़ते जा, या बंद कर दूं फिर कहीं और पढ़ो। दरअसल मैं अपने बच्चों को गाना ये काम करने नहीं देना चाहती थी, तो सच्ची बात है। मैं चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर कुछ और बने, जैसे कि कुछ बड़ा कुछ, कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बन जाए, या कोई वकील बने, कुछ ऐसा चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर बड़े अलग लाइन में चले जाएं। जाकर के लिए तो मैं यही सोचती। जगत विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में जुगलबंदी का जादू बिखेरते रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने पाश्चात्य संगीत के किंवदंती पुरुष जॉर्ज हैरिसन व मिकी हार्ट सहित अनेक विशिष्ट संगीतज्ञों के साथ एल्बम, वृत्तचित्र निर्माण व संगीत संयोजन किया है। Album Living in the Material World, Hard Work, Into the Music, Earth, Wind and Fire, Power Light, Planet Drum आदि के लिए चर्चित उस्ताद जाकिर हुसैन प्रतिष्ठित ग्रामी अवार्ड व क्योटो प्राइज सहित विश्व के अनेक अलंकरणों से समादृत हैं। शांति, शक्ति, रिमेंबर शक्ति आदि लगभग 40 डिस्कोग्राफी उस्ताद जाकिर हुसैन की विलक्षण प्रतिभा, आधी शताब्दी की सक्रियता व संगीत के दिव्य संगम का प्रमाण है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। उस्ताद अल्लाह रखा पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज को तबले की त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी कहा जाता है। इस त्रिमूर्ति के भाल पर चंदन के तिलक की तरह सुरभित हो रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर की माननीय कुलाधिपति। बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए निवेदन है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार, एक तंत्र चंद्रमा लड़ा जलाड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपद गाए, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजाए, धित्ता कृतक धित्ता धा कृतक धित्ता ता कृतक तरिकित तक 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 धा 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 तरिकित तक 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 धा 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 तरिकित तक 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 धा धा। This is the beginning of my life. This is the first step of many, many more steps to come. This is not the pinnacle. This is a pat on the back
stuck to the path, to stay true to my discipline. And for that, I thank ITM University for the blessings that they have bestowed on me today. I will endeavor with all my heart to be able to live up to whatever little spark that they might have seen inside of me. And I hope that I prove to be worthy of their confidence in me. Thank you again. Son, don't try to be a master. Just try to be a good student, and you will get by just fine. This was the mantra that my Pitashri, Ustad Allah Rakha, would begin my lesson with every day. Son, don't try to be a master, just try to be a good student, and you will get by just fine. It's such an important lesson, because as someone said before, when asked or when told, Maestro, you were perfect today, you were fabulous today. And the Maestro said, friend, I have not played good enough to quit yet. I haven't played good enough to quit. That again is an important lesson. If you believe you've done the best you can ever do, you might as well hang up your boots and retire. That's not what creativity is about. That's not what life is about. Life is about taking the next step, and then you see a wall, you find another step and you go across. And you all should know that when you get this and you move the tassel over and you throw the hat up, that's just the first mini step of a million steps that you will take that will define who you are, that will show the world that iron that you are made of, that is sitting in your core. For me, it began very, very early. I was 2 days old. I was brought home from the hospital. My mother presented me to my father, and my father took me in his arms. And the tradition was that he was supposed to recite the kalma in my ear. He put his lips to my ear and recited tabla bowls, tabla syllables, tabla rhythm. My mother was very upset and said, why aren't you reciting a prayer in his ear? That's what you're supposed to do. And he said, this is my prayer. And he said this is how he's going to pray to his maker. And so I must begin his shiksha. And then at the age of 7, when he came to one of my school performances, till then he was just kind of being casual about my learning process. He heard me play that day, and then we came home. And then he said to me at the dinner table, do you want to seriously study tabla? To me, that was like my ship had come home. I had been waiting for him to utter those words. And I jumped up and I said, yes, I want to do this. So he said, okay, tomorrow we begin. I went to bed very happy that the next day I was going to start learning with him.
Next day began at 3 o'clock in the morning. He woke me up and he walked me about 200 meters to a bench in front of this shrine, a Sufi shrine, and we sat there. And in front of the Sufi shrine, while we were sitting there, he began my first lesson of my serious study, and that was what I uttered to you. Gananam Ganapati Ganesh Lambodar Soha. So at 3 o'clock in the morning, from then on for many years, I was learning about the Damaru, about Lord Shiva, about Lord Ganesha, about Krishna, about Saraswati, and along with many great ustads and great pandits who had composed all sorts of compositions. It was a whole different way of life being presented to me. At 6 o'clock in the morning, my mother would snatch me away from him, get me prepared, stuff some paratha and lassi in me, and send me off to the madrasa. And I'd open the Quran, and I would recite the Quran. Another different way of life. And after doing an hour and a half of that, I would cross the street with my school bag and assemble in the St. Michael's High School Church, where we would sing the hymns and then march to our classrooms and start our academic studies. So within a space of a few hours, I would live considered by many as very different ways of lives, different lifestyles. But none of those initiators of those lifestyles who spoke to me about them never insisted or forced upon me the thought that their process was the right one and the other was the wrong one. They never did that. And so I was left to my own devices to figure out. And to me, it was like just a chain that tied all of these together. And it was just one thought process. It did not appear to me or occur to me that these were different thought processes, that these were different lifestyles. And that is the core, or this is the exact center of what Indian art and culture is all about. And I hope that each one of you would somewhere or somehow get the opportunity of being able to live these different lifestyles like I got a chance to. And all of you would get the chance to be able to establish a relationship with your guru the way I got to do. I started off as a son to my father, then a student to my father, a shishya, then an apprentice to my father, then an assistant to my father, then a colleague to my father, and then finally, a friend to my father. I hope you will find the same kind of relationship with your guru, because that's the only way you will arrive at
the source of what the vidya that your guru is trying to impart to you. We believe in an Indian classical music or Indian tradition that a guru is like a fast flowing river, and that it's up to the student to be able to grab a cup full of water, of knowledge, or a bucket full, or a truckload full. It's up to the student to do. So do not wait for your teacher to teach you, but endeavor to inspire your teacher to want to teach you. These are just some thought processes that I've had in my life, and I'm not good at speaking or anything, but I just wanted to share with you these little things and just sort of finish with the thought that in this process of learning, do realize that you're not here to ape or to be a carbon copy of what your guru is or what your teacher is. You are here to make that knowledge your own. And to put your stamp on it, and to carry it on your shoulders and walk the path that will bring a whole different shade to that information. And that's your responsibility to be able to do that. I remember once my father and I finished playing a concert. We got off the stage. Till then, I was so happy that I was aping him perfectly, that I was doing exactly what he was doing. Mannerisms, music, rhythm patterns, riffs, whatever. He got off, we got off the stage. One of his fans came to him and said, Ustadji, you were fantastic, you were amazing, the concert was great. And he said, your son, he plays just like you. And my father said, I hope not. He said about himself, he said that me, meaning himself, this is already done. I am done, I am already here. He better find his way to be able to tell the same story. Otherwise, he'll just be a carbon copy. And you know what happens to carbon copies, or used to? They got thrown in the dustbin. It was the hard copy that was preserved. So that was the first indication to me from my dad that learn everything that you can from me, but find your own way to be able to speak it. And that's what you should be doing. The journey, it's all about the journey. It's never about arriving somewhere. We will never touch the sun as it's setting in the horizon. Perfection is not our goal. The path to perfection is our goal, and to be able to make the most of it, and to be able to learn every little bit of knowledge that we can while on the way to that elusive and impossible goal is what our journey is all about. And we should try to make it the best we can. I hope and pray for you that you find that spirit that will become your friend. Now I have to explain why I say spirit. My father told me that each instrument has a spirit inside of it. And that your most difficult task as a student is to ask or convince the instrument spirit to become your friend and to accept you.
And when that happens, half the journey is done and the other half becomes just as easy and comfortable and happy and joyful. And I found that once I made friend with my tabla, that it was the happiest place that I could be, the greatest playpen that I could ever be in. And I found my voice. I found that I could finally speak that which was inside of me. And I pray for you that you find that spirit in whatever it is that you are pursuing and establish that kind of friendship and relationship so that till the end of time, it would be the happiest thing and the most satisfied and content thing that you will ever do. So thank you all again. I hope to play for you one of these days. Thank you. उर्दू के लब्ध प्रतिष्ठित कवि आलोचक श्री शीन काफ निजाम साहब आज दीक्षांत भाषण देने के लिए पधारे हैं। शीन काफ निजाम साहब की पंक्तियां हैं, ऊंची इमारतें तो बड़ी शानदार हैं, लेकिन यहाँ जो रैन बसेरे थे क्या हुए, जिनसे अंधेरी रातों में जल जाते थे दिए, कितने हसीन लोग थे क्या जाने क्या हुए। शीन काफ निजाम साहब हमारे अपने समय के उर्दू कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मारवाड़ की भूमि को उन्होंने धन्य किया है। मीर व गालिब के वे बड़े मर्मज्ञ हैं। ये कहते हैं कि मीर को सुनेंगे तो आह निकलेगी और गालिब को सुनेंगे तो वाह निकलेगी। शीन काफ निजाम साहब मीर की आह को भी महसूस करते हैं। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, टूक रोते रोते सो गया है। और वो गालिब को भी अपने अंदाज में जीते हैं 18 नौकरियां छोड़ते हुए कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्गे इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शीन काफ निजाम साहब जब लिखते हैं तो देवालय के किसी विस्मृत देवालय की घंटियां हमारे दिलो दिमाग में गूंजती हैं। उनका परिचय हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो से। उर्दू के लब्ध प्रतिष्ठित कवि समालोचक संस्कृतिविद शिव किशन विस्सा को विद्वत समाज शीन काफ निजाम के नाम से जानता है। स्वाधीनता के ठीक पहले मारवाड़ के जोधपुर में जन्मे शीन काफ निजाम ने समकालीन परिवेश में मधुरता व समरसता के तत्वों से पाठकों का परिचय अपनी रचनाओं के माध्यम से कराया है। फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे और जमीन पर हमारी बड़ा शोर है, जमीन पर हमारी बड़ा शोर है, खला से जरा खामोशी भेज दे। मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान प्राप्त शीन काफ निजाम को उनकी कृति गुमशुदा दैर की गूंजती घंटियां के लिए साहित्य अकादमी के सम्मान से अलंकृत किया गया है। शीन काफ निजाम की रचनाओं में लम्हों के सलीब, दश्त में दरिया, नाद, साया कोई लंबा न था, रास्ता ये कहीं नहीं जाता, और भी है नाम रास्ते का, सायों के साये में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। राजस्थान के उर्दू कवि मखमूर सईदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर शीन काफ निजाम की रचना भीड़ में अकेला एक चर्चित कृति है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में लफ्ज दर लफ्ज, मानी दर मानी व
तजकिरा मासिर शाउराए जोधपुर सम्मिलित हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात सहित विश्व के अनेक देशों में काव्य शास्त्र व साहित्य समालोचना पर केंद्रित संगोष्ठियों में श्री शीन काफ निजाम ने भागीदारी की है। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। ब्राह्मण कुल में जन्मे श्री गणेश दास व श्रीमती गौरी देवी के सुपुत्र श्री शिव किशन विस्सा ने शीन काफ निजाम के रूप में प्रसिद्ध होने से पहले संत मीराबाई के नगर में रहकर संस्कृत पढ़ी, विज्ञान तथा गणित से हाई स्कूल किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, कॉलेज में पढ़ाया, राजस्थानी, अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई की। दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। वाह, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। वाह, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। एक दूजे का हाल सुना करते थे। वाह, एक दूजे का हाल सुना करते थे, बिन बोले ही बात किया करते। जीवन में 18 नौकरियां बदल चुके शीन काफ निजाम ने हकीम मोइनुद्दीन अहमद से फारसी सीखी और उर्दू कविता, साहित्य समालोचना व भारत की मयूर वर्णी विरासत के प्रतिनिधि भाष्यकार के रूप में स्थापित हुए। श्री शीन काफ निजाम समकालीन भारत के उन विशिष्ट रचनाकारों में से हैं जिनको पढ़कर व सुनकर संस्कृति का रंग बिरंगा ताना बाना आंखों के सामने झिलमिलाता है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर दीक्षांत भाषण के लिए श्री शीन काफ निजाम को अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव करता है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रतिष्ठा आयोजन उर्दू कविता का सालाना जलसा इबारत में शीन काफ निजाम साहब पहले हमारे बीच पधार चुके हैं। आज दीक्षांत समारोह में वे दीक्षांत वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत आदर से शीन काफ निजाम साहब को दीक्षांत भाषण देने का अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं आपको दोस्तों ही कहूँगा, आदरणीय मंच, और इसलिए कि जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया कि मैं मीर और गालिब का दोस्त बनना चाहता हूँ, वैसे ही मैं आपका भी दोस्त बनना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि आज आपका दीक्षांत समारोह हो रहा है। आप जानते होंगे कि दीक्षांत समारोह के मानी ये होते हैं कि आज से आपकी शिक्षा का सिलसिला समाप्त हुआ। हम लोग कितने बदनसीब हैं, वो चाहे तबला हो, पेंटिंग हो, शायरी हो, साहित्य हो, कि इन कमबख्तों की शिक्षा समाप्त ही नहीं होती। कल इनके छोटे से बेटे अथर्व सिंह से बात करते हुए मैंने उसे कहा कि बेटा, मसला ये है, क्रिकेट वाले की एक टाइम के बाद में नेट प्रैक्टिस बंद हो जाती है, फुटबॉलर की भी हो जाती है। ये मेसी और रोनाल्डो आज दिख रहे हैं, कल ये कैलेंडरों में रह जाएंगे जैसे इनके आगे वाले रह गए। लेकिन हम बदनसीबों को, जिसे लोग बदनसीब कहते हैं, मैं खुशनसीब समझता हूँ कि हम खुशनसीबों की रेखा में दीक्षांत समारोह नहीं है। यही बात जब उस्ताद जाकिर हुसैन कह रहे थे तो मैं खुश हो रहा था। मैं कहा चलिए, कोई न कोई दीवाना तो अभी बाकी है, और जब तक एक दीवाना बाकी है तब तक वीराना बाकी है। जिस मुल्क में वीराना नहीं होता ना, वो मुल्क बहुत बदनसीब होता है। याद रखिए, संस्कृति तहजीब की हिफाजत कोई और नहीं करता, वो लोग करते हैं जिन्हें समाज फालतू लोग समझते हैं। अगर मैं कोई रास्ते में मिले और मुझे पूछे कि क्यों मियाँ क्या करते हो,
और मैं कहूँ कि शायरी करता हूँ। अच्छा, करते क्या हो? जैसे तो कोई करना ही नहीं है। करना हो तो या तो उस्ताद की तरह या आपकी तरह कोई बड़ा नाम पैदा कर दीजिए, वरना शायरी वारी करना क्या करना होता है। बहरहाल मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर में कहूँगा, काफ़ी वक्त हो गया, आप लोग थक भी गए होंगे। एक साहब हुए हैं जर्मनी में, नाम था उनका काफका। उन्होंने अपनी डायरी लिखी, उसमें लिखा कि आई कैन प्रूव एट एनी टाइम दैट माई एजुकेशन ट्राइड टू मेक अनदर पर्सन आउट ऑफ मी देन द वन आई बिकेम। दूसरी जगह भी ऐसी बात लिखते हैं और तीसरी जगह भी यही लिखते हैं। आखिर में कहते हैं कि माई एजुकेशन स्पॉइल्ड मी, इट मेड आउट ऑफ मी एन एडवोकेट विच आई वॉज नॉट। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये बहुत अदब के साथ, नम्रता के साथ, दोस्ती के साथ कहना चाहूँगा कि ये तीनों चारों बातें जो मैंने अभी दोहराई आपके सामने काफका साहब की, ये उन्हें पता कब चला? माई एजुकेशन स्पॉइल्ड में, ये पता कब चला? जब एजुकेशन खत्म हो गई। इसलिए शिक्षा का महत्व या एजुकेशन का महत्व इसी में है, और शायद इसी से ये नतीजा निकलता है कि एजुकेशन या शिक्षा स्वयं को जानने और समझने का सबसे बड़ा जरिया है। हमारा मसाला ये है कि हम जिस भाषा में रहते हैं, ये आप सब लोगों को मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ। जैसे इनका उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का मसाला तबला है, उनका मसाला कंप्यूटर है, और इसके बारे में मुझे उपनिषद का रमाशंकर साहब खास तौर से आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि उपनिषद में एक कौल है कि देवता होकर ही देवता को पाया जा सकता है। आप इस सभी लोग मेरी इस बात की तायद करते हुए मुझे समर्थन दें कि तबला होकर ही जाकिर हुसैन बना जा सकता है, कंप्यूटर होकर ही बना जा सकता है, और शब्द को साध कर ही कोई कवि हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हमने शिक्षा और विद्या दोनों को एक मान लिया है, जो है नहीं। बोलचाल में तो ठीक है, शिक्षार्थी भी है, विद्यार्थी भी है, दोनों ही ठीक है। लेकिन जैसा इन्होंने भी कहा, मैं उस बात को थोड़ा सा पलट के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ताल का नहीं, सुर का आदमी हूँ। तो मैं ज़रा सा उसे बदल के कहना चाहूँगा कि शिक्षा रास्ता है, विद्या मंजिल है। और रास्ता इतना लंबा है जितना मैंने अर्ज किया को ख़त्म होता ही नहीं, कम वक्त तो मंजिल तो एक यूटोपिया है। तानसेन भी सरस्वती नहीं हो सका, कालिदास भी सरस्वती नहीं हो सका, शेक्सपियर भी कोई गॉडेस ऑफ पोइट्री नहीं हो सका। अब यहाँ एक बात और है कि शिक्षा चलना है, विद्या पाना है, पहचानना है। और एक बात और कि जो अध्यापक है, और उस्ताद का बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि जो शिक्षक है वो घड़े का पानी है। 700, 1000, 2000 पेज की किताब है, वो वैसी दुनिया उसी में है। ही नोज कि आपको कितना, कहाँ और कब पानी पिलाना है उसमें से। लेकिन मास्टर जो है वो कुएं का पानी है, हर वक्त बहता रहता है, उसका पानी ऊपर से नहीं आता, उसका पानी सोतों से आता है। इसलिए मास्टर होना, इनके वालिद ने, इनके पिताश्री ने जो इन्हें कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि मास्टर होना आसान काम नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। सुकरात कोई रोज रोज पैदा होते हैं, महात्मा गांधी कोई रोजाना पैदा होते हैं, कभी कभार अल्लाह मियाँ से ऐसी गलती हो जाती है। और
क्यों गलती इसलिए कहता हूँ कि इन लोगों के साथ हमने क्या किया है। ईसा मसीह आया तो हमने कितना आदर किया उसका, सुकरात का कितना आदर किया, मंसूर का कितनी इज्जत दी उसे, महात्मा गांधी का कितना बड़ा सम्मान किया, यज्ञशुद्ध सहशुद्ध 3 गोलियां दी उसके, ले खुश हो जा। तो हमने तो इन बड़े लोगों का जिनकी अल्लाह की तरफ से बहुत ऐसे समझ के भेजा गया कि ये कुछ करेंगे, और इसीलिए फराक का एक शेर सुने कि हजारों, खिज़र एक पैगंबर का नाम है जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है इस्लामिक रूप के एतबार से। अब फराक का शेर सुने कि हजारों खिज़र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, आदमी की नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्श पैदा किए, हजारों खिज़र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, मगर देखें तो आदमी अब तक भटकता है। आदमी होने का मतलब भटकना है, और भटकते हुए मंजिल तक पहुंचना है, वो उसकी शनाख्त भी है। गुरु आपको ये बताता है कि देखिए, विज्ञान हो, कला हो कि साहित्य हो, ये सारे एक हैं। कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है, सब में पानी एक। आपने ग्लास में पानी भर लिया है, मैंने मटकी में भर लिया है, सिंह साहब ने बड़े किसी कंटेनर में भर लिया है, लेकिन पानी तो एक ही है। हम सब अपनी अपनी तरह से, आप भी शामिल है उसमें, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। अपना अपना तरीका है कि वो तबले के ताल में ढूंढ रहे हैं, वो कंप्यूटर के किसी कीबोर्ड पर ढूंढ रहे हैं। मेरे जैसा जाहिल गंवार आदमी शब्दों को साधने और उसमें ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि वो शब्दातीत है। बहरहाल विज्ञान, धर्म, सारी चीज़ें, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर मैं इस एक चीज़ को तर्क से देख लूँ, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं तर्क से देखता हूँ, तो आप उसे दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी कह सकते हैं। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट से देखूं तो आप उसे साइंस कह सकते हैं। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को अनुभूति से देखूं तो आप उसे अध्यात्म कह सकते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर संवेदनाओं के साथ देखूं तो उसे साहित्य कह दीजिए। ऑब्जेक्ट एक ही है, और अगर ऑब्जेक्ट एक है तो ये कहना कि विज्ञान और कलाओं में बनती नहीं है, गलत। एक हवाला दे दूं आपको, हर आदमी का, देखिए सवाल एक ऐसी चीज़ है जो कभी मरता नहीं है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, आपके बहुत काम की होगी। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि बात ही कम वक्त अच्छी है। सवाल कभी नहीं मरता, सवाल नहीं बदलता, जवाब बदलता है। और जब जवाब बदलता है तो वो एक नया सवाल पैदा करता है। आप पाएंगे कि सवाल सवाल ही को जवाब पैदा करता है, तो जवाब क्या रास्ते से पैदा करता है। इसलिए सवाल पूछना बंद मत करो, बहुत उम्दा बात कही गई थी। आप याद करिए, आप उस देश में रहते हैं जिस देश की ऋषि मुनियों ने प्रश्नोपनिषद लिखा था। उपनिषद का नाम ही प्रश्न है। हम अपने बच्चों को, जिस तरह हमारे सिंह साहब ने मेरे बारे में कहा कि मैं कहता हूं कि बच्चे को बोलना अपने आप आ जाएगा, बच्चे को सुनना सिखाओ। वैसे ही जवाब तो वो वैसे ही अपने माँ बाप को बड़ा होकर दे ही देगा, उसे सवाल करना सिखाओ। और पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा फिलोसोफर जिसे माना गया बर्टन रसेल, वो कहता है कि सही जवाब पाने का पहला तरीका ये है कि सही सवाल पूछो। इसलिए ये आसान नहीं है कि हमने सवाल पूछ लिया और बात खत्म हो गई। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि साइंस और कलाओं के बीच में दुश्मनियां हैं वगैरह वगैरह। आप पढ़ते होंगे, अखबार वगैरह में आती रहती है। अगर आप अखबार सोशल मीडिया के अलावा भी पढ़ते हैं तो न्यूटन के समाधि लेख को एक प्रपोज्ड एपिटैफ था उसका,
एक कतबा समाधि पर लिखने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने क्या लिखा है वो सुनिए, और फिर कहिए कि विज्ञान में और साहित्य में लड़ाई है। वो कहता है, और याद रखें कि ये 18वीं सदी की बात है, 1727 में न्यूटन मरे थे। उन्होंने कहा कि नेचर एंड नेचर्स लॉज लेट इन नाइट गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड एवरीथिंग वाज लाइट। ये अलेक्जेंडर पोप है। आप देखिए क्या पैगंबराना एक अवतार पुरुष की तरह, जैसे कृष्ण गीता में बोल रहे हैं या हजरत मोहम्मद किसी जगह पर बोल रहे हो या नानक बोल रहे हो, बड़ा पैगंबर बोल रहे हो। मेरा कहना यह है कि विद्या में, शिक्षा की बात समाप्त होगी, मैं विद्या की तरफ आ गया हूँ। विद्या में यही होता है नहीं होता, विद्या में यह भी होता है। इसलिए वो लोग और जिन्होंने ये कहा कि यही सही है पिछली शताब्दियों से अब तक, उसका हश्र हमारे सामने है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए कि जब मैंने कहा कि यही सत्य है तब झूठ के अलावा कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन जब मैंने कहा कि यह भी सत्य है, इसलिए एक साहब हुए फिलॉसफी में अमेरिका में, उन्होंने कहा कि यस और नो कुछ नहीं। लाइफ जो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लाइफ तो ग्रे है, धौला भी है, काला भी है। इसलिए ये न कह दीजिए सिर्फ कि ये गलत है, ना, ये आधा गलत भी हो सकता है, आधा सही भी हो सकता है। जैसे हमारे सिंह साहब ने मेरे बारे में और इनके बारे में कहा, जो इनके बारे में कहा वो सत्य है, मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल सफ़ेद है, समझ लीजिए। चलिए, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही तो दृष्टिकोण नहीं होता। ये दूसरी बीमारी आपकी कह रहा हूँ। आपने जिंदगी को सिर्फ ये कहा कि एक ही दृष्टिकोण ठीक है और वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या सांस्कृतिक दृष्टिकोण कोई दृष्टिकोण नहीं है? किसी ने पूछा कि समय क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तकवीन कायनात किस तरह हुई। संस्कृत के आलिम के पास गया तो उसने कहा, अयम संसारः शब्दस्य परिणामः, यह संसार शब्द का नतीजा है। फिर दूसरे के पास गया कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं? कहता कुन फायकुन, अल्लाह ने कहा कि हो जा और सृष्टि हो गई। अब तीसरे के पास गया कि बंदा परवर आप भी कुछ सुनाइए। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। चलिए आप भी हो गए। अब हमारे ज़माने के रोला बार्थ वो कहते हैं कि मैन डज नॉट एग्जिस्ट प्रायर द लैंग्वेज, प्रायर टू द लैंग्वेज, सॉरी। और विष्णु पुराण कहता है कि एक महापुरुष था, उसने कहा एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। इन सभी ने शब्द ही तो कहा ना, ये सब अलग अलग मजहब हैं। और याद रखिए कि हम इनके मानने वाले आपस में ठीक उसी तरह लड़ते हैं जैसे गलियों में लोग लड़ते हैं। लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े फिलासफर्स क्या कह रहे हैं। और आप चूंकि साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके साइंस के दादा बाबा आदम कह दीजिए, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स, आर्ट्स एंड साइंसेस आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। सारे उलूम, सारे फनून, आगे छोड़ रहा हूँ इसे, वो एक ही पेड़ की जड़ है। और खुद आइंस्टीन से पूछा गया कि साहब आप क्या बनना चाहते हैं? वो कहता है अल्लाह की फिटकार कि मैं फिजिस्ट हो गया, भौतिक शास्त्री हो गया, वरना मैं तो संगीतज्ञ होना चाहता था। मैं आज भी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को वायलिन की धुन की तरह सुनता और समझता हूँ। उनकी किताब है आइडियाज़ एंड ओपिनियन, आप पढ़ लीजिए। ऐसा नो कह देखे कह गए महाराज। अर्थात शब्द सबब है सृष्टि का, ये सब कहते हुए। और भाई हमारे हाथ से जो हमने कहते हैं कि यथार्थ है, ये वास्तविकता है, हमारे शहर में नहीं, हमारे गांव में नहीं, हमारे सूबे में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे यहाँ तो शब्द जो है वो नित्य है।
अर्थ बदल जाते हैं, शब्द वहीं रहता है। जैसे सवाल वहीं रहता है, जवाब बदल जाते हैं, वैसे शब्द वहीं रहता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। और अर्थ जब बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम कहते हैं ये वास्तविक है। हमारा शायर कहता है कि ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना था। हमारा फलसफा कहता है कि जो देखता है वो तो हकीकत है। इसे गौर से सुनिएगा कि जो देखता है वो तो हकीकत है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ख्वाब है। यानी जो देखने वाला है वो सही है, जो दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें संस्कारों से मिलती है, और उसकी तरफ जाने के लिए सबसे पहले हमें वो काम करना पड़ता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं, क्योंकि उसके बाद विद्या का काम शुरू होता है। तो आज से दीक्षांत नहीं है, आज से आपके नए सफ़र का आगाज़ है, क्योंकि हर समाप्ति इंडियन फिलॉसफी के एतबार से हर समाप्ति जो है वो नई शुरुआत का पेश खेमा है। अब एक बात और, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम कहा, लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत समेटते हुए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम भी पेड़ को बचाना चाहते हैं और यूरोप वाले भी पेड़ को बचाना चाहते हैं। देखिए ज़रा सा फ़र्क समझ लीजिए। आप इस पर रहे तो ठीक है, वरना आप अमेरिकन तो हो ही जाएंगे, खुद आपको बना ही देगा माहौल आपका, मेरी ज़रूरत नहीं है। पर इस पर गौर कर लीजिएगा बनने से पहले। हम पेड़ को इसलिए बचा रहे हैं कि वो हमारे परिवार का सदस्य है। हमारे बुजुर्गों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा है। सारा कायनात का जर्रा जर्रा मेरे परिवार का, मेरे कुनबे का हिस्सा है। इसलिए मैं जब पेड़ को बचाता हूं तो मैं अपने परिवार के एक सदस्य को बचाने जा रहा हूं, पेड़ को नहीं। इसलिए हमारे राजस्थान में सबसे पहले अमृता आज से 400 बरस पहले पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गई थी। कत्ल हो गया उन 300 लोगों से ज़्यादा लोगों का, लेकिन उन्होंने पेड़ को कटने नहीं दिया। वो जाहिल लोग थे, अनपढ़ थे, महापंडित नहीं थे, काशी और वाराणसी में जाके उन्होंने विद्या नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये संस्कार जो था वो उनको डीएनए में मिला था। उस संस्कार की वजह से वो पेड़ से लिपट गए। अब आप आज चिपको आंदोलन से खुश हो रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो ये काम बहुत सदियों से पहले से चल रहा है। इसलिए जब बाइबल ने कहा था कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, देन वर्ड इज गॉड, उनमें से उन्हीं के खानदान का आदमी निकलता है, बूबर, मार्टिन बूबर। वो कहता नो, इन द बिगनिंग देयर वाज रिलेशन। आगाज में संबंध था, रिश्ता था। ये रिश्ता जो है वो उस औरत को और उस जैसे सैकड़ों औरतों और मर्दों को उस पेड़ से लिपटने के लिए मजबूर किया। यानी हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इस पेड़ को बचाओ, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर ये पेड़ नहीं रहा तो हमारे सांस कैसे होगी? किस कदर मतलब यह काम हो रहा है सब। इसलिए वो कहते हैं ना, जैसे आप उनको कहिए कि चाय पियेंगे, नो आई कैन डू विदाउट इट। अरे भाई ये किसने कहा तुम्हें? आप कॉफ़ी पियेंगे, नो आई रिफ्यूज टू बाई इट। अरे भाई खरीदना नहीं है, हम पिला रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं आपको। इसीलिए उनके लिए पेड़ जो है वो उनके इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनकी सांस को ठीक करने के लिए है। हमारे लिए वो सांस को ठीक करने के लिए नहीं है, साये के लिए भी नहीं है, फल के लिए भी नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी के लिए भी नहीं है। वो हमारे परिवार का सदस्य है। और ये संस्कार हमें, हमारा पूरा संस्कार पूरी देती संज्ञा। इसलिए एक बात अर्ज करूं आपसे कि मज़हब जो है, धर्म मज़हब, ये आदमी से खोने की चीज़ है और अदब या साहित्य जो है आदमी के होने की चीज़ है। आप देखें, इसलिए मज़हब आपको इख्तलाफ की इजाज़त नहीं देता, मज़हब आपको विरोध करने की आज्ञा नहीं देता, वो चाहे कोई मज़हब हो।
लेकिन अदब देता है। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ शेक्सपियर बेकार था, क्या आता था उसे? कुछ नहीं। मिल्टन क्या था मिल्टन में? कुछ नहीं। जयपाल सार्थ क्या था? कुछ भी नहीं। आई कैन से मज़हब के किसी आदमी के बारे में या पैगंबर के बारे में ये अगर कमेंट करूँगा, सरतन से जुदा है। फिर ये मज़हब और अदब का फ़र्क है। अदब आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मज़हब आपकी उस आज़ादी को अपनी जेब में रखता है। याद रखिए, इसलिए जब आदम ने जन्नत में गेहूं का या एप्पल का भक्षण किया था तो कहा था कि फॉरबिडन ट्री का फल चखा है, इसलिए दैट इज़ फॉरबिडन ट्री। हम लोगों ने यानी साहित्यकारों ने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि इसको खाने से मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मैं नंगा हूँ। ये तो कॉन्शियसनेस की चीज़ है भाई, इसे फॉरबिडन क्यों? सिन कैसे? क्या कॉन्शियस होना सिन है? ये मज़हब सिखाता है कि अगर इस तरह समझदार हो गए तो ये पाप करोगे। अब सवाल ये है कि ये सारी भूमिका थी, असल बात अब खत्म की तरफ है। मक्ते का शेर, जिसे ये दानिश वगैरह कहते हैं कि मक्ते का शेर, तो मक्ते का शेर है कि 20वीं सदी सिटीजन की सदी थी। विद्वानों का ख्याल ये है कि 21वीं सदी नेटिजन की सदी है। अब सिटीजन से कोई मतलब नहीं, अब चीज़ें नेटिजन से तय होगी। नेट तय करेगा कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और अब हम लोकल नहीं रहे, अब हम ग्लोबल हो गए हैं माशाल्लाह। अब पूरा गांव, ये कायनात जो है ग्लोबल गांव है, इसलिए सारी बुराइयां हम में कॉमन रहेगी। अच्छाइयों का तो क्या कोई लेना देना, क्या गाँव में तो कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए हमने, आप देखें कि हमारे ज़माने के इस ग्लोबलाइजेशन ने और टेक्नोलॉजी की कृपा से आज का आदमी जो है वो साइबर होके रह गया है। आपने भी देखा होगा, कतर के महाराज आए थे, उनको बचाने के लिए जो सुरक्षाकर्मी था रोबोट था, देखा होगा आपने, बड़ा लहीम शहीम भीमकाय। तो हम उस सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी आदमी में उम्मीदें बाकी है। इसलिए बाकी है कि अभी आपने जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया को बहुत तरक्की दी, वहाँ आपने एक काम और किया कि आपने एक इथिकल टीम बना रखी है। आप वाकिफ होंगे उससे, मैं तो ज़रा सा आपको हिंट दे के बात छोड़ रहा हूँ। इसीलिए मैं फिर अपनी बात को ले जाना चाहता हूँ आइंस्टीन पर। उसने लिखा था, आई फियर द डे दैट टेक्नोलॉजी विल सरपास आवर ह्यूमन इंटरैक्शन, द वर्ल्ड विल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। इसलिए आप पर ये जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आज का आदमी हूँ, विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आज का आदमी हूँ, मैं बीते हुए कल का भविष्य हूँ और आने वाले कल का भूतकाल हूँ। इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक साथ दो फ़र्ज पूरे करता है, अतीत के भी, भविष्य के भी, माजी के भी और मुस्तकबिल के भी। तो मुस्तकबिल में हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ आदमी दो ही काम करता है, या तो युद्ध की तैयारी करता है या युद्ध करता है, और कोई काम नहीं। पूरे ज़मानों में हमने सिर्फ यही काम किया है, अभी भी हो ही रहा है। आप जानते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये भूल जाते हैं कि अदब या साहित्य जो है वो हमें टेक्नोलॉजी और साइबर वाला जो हवाला मैंने ऊपर दिया, ये आदमी को अकेला बनाता है। दोनों का रिश्ता देख लीजिए गौर से, वो अकेला बनाता है आदमी को। क्यों? कि अब आदमी सोचना, पढ़ना, लिखना सब मशीन कर रही है, कल को महसूस करना भी उसके हवाले कर दिया तो अल्लाह जाने क्या होगा। अभी तक तो सोचने समझने का काम वो कर रही है, जिस दिन महसूस करने का काम भी मशीन के सुपुर्द हो गया, फिर तो क्या कहना है, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इसलिए, लेकिन अदब आपको अकेले रहने का अदब सिखाता है। इसलिए अगर मैं अकेला रहता हूं तो इसके ये माने नहीं है कि मैं मर्दुम बेजार हूं।
मनुष्यों से नाराज हो गया, उनसे नाराज ना, मैं आपके अकेलेपन का सम्मान कर रहा हूं ताकि आप आइसोलेशन में सोच सकें, कुछ इमेजिन कर सकें, कुछ नई चीज़ें पा सकें। और यहाँ भी आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो आदमी अकेले रहने का अदब नहीं सीखता, उसका अकेला रहना और नहीं रहना बराबर है। ये सारी बातें अलग अलग तरीक़ों से वैज्ञानिकों ने कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 7वें दीक्षांत समारोह की आगामी कार्रवाई के संचालन के लिए एक बार पुनः चंचल जी को आमंत्रित करता हूं। Thank you, sir. Convocation Day is a day to revisit the ideals of education, to revisit your inner self. Very aptly pointed by Dr. Bhatkar, sir. Ustad Zakir Hussein's father teachings stand out as a universal teachings for all of us. Don't try to be a master, just try to be a good student. His father put tabla rhythm into his ears and he made the whole life out of it. Therefore, we all need to stick to our discipline and emerge as a hero or master of it. Be a hard copy, instead a soft copy. And what to say for Sheikh of Nizam Sahab, sir? You are just wonderful. I must say कि जिस मुल्क में वीराना नहीं होता वो बदनसीब होता है, जिस मुल्क में वीराना नहीं होता वो बदनसीब होता है। पर यह ITM है साहब, पर यह ITM है साहब, यहाँ हर शख्स दीवाना और खुश नसीब होता है। There is one more to go. सबकी अपनी दौड़ है, सबकी अपनी दौड़ है, सबके अपने मानी, सबकी अपनी दौड़ है, सबके अपने मानी। एक चाह मुझे अरसे से रही, एक चाह मुझे अरसे से रही कि आदमी बने आदमी। To proceed further, may I now request Honorable Chancellor Madam Shrimati Ruchi Singh and Honorable Pro-Chancellor Sir Dr. Daula Singh Chauhan to come forward for awarding degrees to our students. I request our gold medal awardee Ms. Priya Srivastava of BCA Honours to receive her honour. Please give a huge round of applause for her. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Our Honorable Chancellor Madam is a perfect epitome of these words. With a great sense of pleasure, I invite Honorable Chancellor Madam Shrimati Ruchi Singh Chauhan for her kind words. She is a lady who firmly believes in the quality work, an all-time powerful administrator, and a beautiful nourisher of the Diksha Patra. Ma'am. Good evening, everyone. The only students who replied are the school students. What does that tell us? Are they the only ones listening? Most revered Shri Sheen Kaf Nizam ji, one of the greatest computer scientists of our times, Dr. Vijay Pandurang Bhatkar ji, Tabla Maestro Ustad Zakir Hussain ji, our founder Chancellor Shri Rama Shankar Singh ji, Pro-Chancellor Dr. Daula Singh,
Pro Vice Chancellor Professor Khedkar, Registrar Omveer Singh sir, our governing body members, galaxy of intellectuals, all the members of ITM fraternity, and my dearest students. Today is a special day for ITM, and it's a day of pride and happiness for all of us. A few days back, on 19th of November, the 7th Convocation of ITM University Gwalior took place here at the same venue. Dr. Bhatkar and Ustad Zakir Hussain were invited to be conferred upon the honorary degrees. As both the dignitaries were preoccupied with their professional obligations, they could not be present in the ceremony. We are fortunate that Dr. Bhatkar and Ustad Zakir Hussain Sahab consented to be a part of this special convocation ceremony. Today, we all listened to the convocation speech of our renowned Urdu poet, Mr. Sheen Kaf Nizam, which enthralled all of us. Today's special convocation witnesses a confluence of personalities of art, science, and literature. Their presence together reminds us not only of the historic dialogue between Einstein and Gurudev Rabindranath Tagore, but also of C.P. Snow's book, The Two Cultures, published in 1959. We all know that The Two Cultures was included in the 100 best books of the world, which threw light on the intertwining of science and art in a new dimension. The dignitaries present affirm the deep bonding between art, science, and literature. I think that science and art will go hand in hand forever. A scientific mind learns to understand arts better. If you don't have that mind, the abstractness in the art will not be understood. While Dr. Bhatkar is searching for the meeting point of science and spirituality, Padma Bhushan Ustad Zakir Hussain has been an ardent admirer of famous science fiction writer Isaac Asimov. This special relationship between art and science reassures us of terrible dangers of the future. Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar is the architect of Param supercomputer. His contribution in making India IT and digital competent is outstanding. The whole world has been afflicting from the problem of digital divide for a long time. Dr. Bhatkar has an incomparable contribution in bridging this gap very quickly. According to the ideals as stated in Mahatma Gandhi's book, Hind Swaraj, the Unnat Bharat Abhiyan of Government of India has also been designed to develop the villages of India. As stated by him, arts is equally important for making our lives meaningful and happy. Somewhere he says, take it, and there's a saying that इस चीज़ को गांठ बांध लो अपनी ज़िंदगी में कि आर्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जितना आपकी अभी जो आप डिग्री प्रोफेशनल ले रहे हैं वो। और जब ऐसे लोग कहते हैं तो उसको बहुत ध्यान से समझ के अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। It has been written in our eulogy of Tabla virtuoso Ustad Zakir Hussain Sahab that his magical fingers give the impression of the entire cosmos moving on its rhythm and the beat. It's an unforgettable memory for me. When I heard him around 18 years back in Siri Fort Auditorium in Delhi, it was an experience which immediately took me on a journey of classical music. And since then, I haven't looked back.
This is my suggestion to all of you here today. Listen to the classical music. It will give you a mind which will make you understand this world better. I feel it while listening to him that the whole universe and the rhythmic sound of Hussain Sahab's tabla are in harmony with each other. He is the only musician after the world-renowned sitar maestro Pandit Ravi Shankar Sahab who has brought the East and the West together. IIT University Gwalior family is overjoyed with your gracious presence. He last visited Gwalior in January 1997, if I'm not wrong. It's the same year when ITM was founded. It's taken this city 25 years to get him back. And we at ITM University feel proud to have been a reason to bring him back to this city. And we are also celebrating our 25th anniversary celebrations. It was due to this charismatic personality that his magical fingers on tabla and his curly, wavy, voluminous hair swaying to the same beat created such a unique atmosphere that the youth, especially the girls, used to gush around him. No one can forget a tea brand advertisement of yesteryears featuring Ustad Ji enthralling everyone and his mesmerizing gestures and the tagline, Wah Taj. I have interacted with him for hardly 5 hours, and believe me, today I am more convinced that being humble and having that humility in you is the first and foremost point in life if you want to digest success. Noted poet and critic Sheen Kaf Nizam Sahab has expanded the vision of all of us by his convocation address. His work, Gumshuda Dair Ki Gunjti Ghantiyan, takes us to a temple of a bygone era whose bells still reverberate in the air. No language has anything to do with parochialism. It has a broad and lofty plane. In the language and grammar of art, the creation of the imagination takes on a beautiful form and creates a whole new musical environment. And these are the lines handwritten by him. I have had the pleasure of meeting him twice, and every time I have so much to learn from him. In last night's dinner conversation, after that conversation, I'm a better parent today. Our guests will be pleased to know that the campuses of ITM University are being developed under the shade of the same Bodhi tree under which Tathagat Buddha attained enlightenment. I hope today that you will observe and you will sponge in yourself whatever you have heard today from all these renowned people on this dais, and I can only wish that you become as not carbon copies as they say, but individuals in yourselves. At the end, my message to you is this: don't let others' perception dictate your behavior and what and who you will be. You will never grow as a person, but if you leave yourself to experience, despite of what others think, then you will grow and learn more as a person. We have people in front of us today who were not dictated by the perceptions of the society, so leave all inhibitions and perceptions behind and celebrate your dreams. On behalf of the entire ITM family, I thank you and welcome you. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much for your words and for the words of wisdom.
Now I would like to invite Dean Academics, ITM University Gwalior, Dr. Sonia Johari ma'am, to present formal vote of thanks. A very good evening to the august gathering on and off the dais. Padma Bhushan Dr. Vijay P. Bhatkar, Padma Bhushan Ustad Zakir Hussain ji, Revered Shri Sheen Kaf Nizam, Honorable Founder Chancellor Shri Ramashankar Singh ji, Venerated Chancellor Shrimati Ruchi Singh Chauhan ma'am, Respected Pro-Chancellor Dr. Daulat Singh Chauhan, Honorable Vice Chancellor Professor S.S. Bhakkar, who is not here today, Respected Registrar Dr. Ovir Singh, Pro-Vice Chancellor Professor S.K. Narayan Khetkar, Deans, HODs, staff and students of ITM family. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to have earned the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the divine speakers who blessed us with their golden words of wisdom. Sir, dignitaries like you radiate a source of energy within us. I bow before your ideas and elegance of explanation which deserves deepest sense of appreciation. I owe my gratitude to Founder Chancellor and Madam Chancellor for their impeccable recommendations and guidance. I sincerely acknowledge the efforts of Dr. Daulat Singh Chauhan, who rendered incessant support and always help us sail smoothly in all spheres. My sincere thanks to Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor and Registrar Sir for being the guiding force whenever it was needed. Thank you for being with us today and every day. I acknowledge the efforts of all teaching and non-teaching staff members who always worked relentlessly, as an event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a motivated and dedicated committee and a team of volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of the task beyond their comfort zone. A grand congratulations to all degree holders on the Special Convocation 2022. Hope you enjoyed the event. Stay happy and smiling today and always, and wish you a very happy, glorious future. Thank you. May I now call Dr. Omni Singh Sir, Registrar ITM University, to request Honorable Chancellor Madam to declare the convocation closed. Honorable Chancellor, may I request you to declare the convocation closed. I hereby declare the special 7th Convocation of ITM University Gwalior closed. Thank you. ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर की परंपरा है प्रत्येक आयोजन के समापन में संपूर्ण राष्ट्रगान की। संपूर्ण राष्ट्रगान
5 छंदों में 5 स्टैंजा में है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर का सांस्कृतिक दल उसकी प्रस्तुति देगा। सभी अतिथियों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के पश्चात फोटो सेशन के लिए सामने उपस्थित होंगे। उस माइक को सेट कर दो आगे वो स्टैंड क्या होगा। पोडियम में डालो। इस पे गालो नहीं लगाना। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
सिंहासन पाशे प्रेम हार होय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री हे चिर सारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि दारुण विप्लव माजे तब शंख ध्वनि बाजे संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे घोरति निर्घन निभिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे जागृत छिल तव अविचल मंगल रत नयने अनिमेषे दुस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुम्हि माता जनगण दुःख त्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे रात्रि प्रभातील उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समीरन नव जीवन रस ढाले तव करुणारुण रागे नेत्रित भारत जागे तव चरणे नत माता जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता जय 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 हे ये स्टूडेंट्स ने
राष्ट्रगान की परफॉर्मेंस खास आपके लिए बनाई थी और ये पहली बार है हमने ये किया है। सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां इन स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, मतलब नर्सिंग और अलग अलग कोर्सेज के एक भी म्यूजिक का स्टूडेंट नहीं है इसके अंदर। कैन आई हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। I request one and all to kindly rise and stand as the academic procession is about to leave this amphitheatre.